she's back. All right. So I'm again sharing my screen. Cool. Right. So yes, political environment, economic environment, that was definitely in favor. Talking about the the social culture factor. You know, obviously, for a Ola like company, it was very important to have the boom in the smartphone. So they analyzed that smartphone users were increasing in the last couple of years. There has been a tremendous increase in the smartphone users because their solution was actually based on an application. For an application you need a smartphone. So that is where the socio-cultural factor came into picture ki yaar, people should be using phone, more and more phone, and that to smartphone, so that they can really use my Ola app, right? And when they analyzed India, they found out then in India, less than 25 years of age people is actually 50% of the whole population. I mean, by those statistics, I mean to say कि हमारे देश में youth is biggest. And when they defined, if you remember, जब इन्होंने अपना TG define किया था, तो for them it was urban professional in a metro or a tier 1 kind of a city, right? A quite young person, very open towards commuting through a cab in a and working professional, right? So that comes into the youth category. So 25 years, less than 25 years, it's a huge population, and they thought this is the right economy to work to work out in, right? And tech savviness, definitely, everybody was there has been a shift. Everybody was becoming tech savvy, and everybody was using phones, smartphones, laptops, tabs aa gaye the, grandparents, like I said, they started using mobile, WhatsApp, Facebook. Even कई लोग अब एज ग्रुप बड़े भी होते हैं तो भी वो ओला भी बुक कर लेते हैं, और अगर नहीं तो दे केम अप विद द फीचर जहाँ पे कोई किसी के लिए बुक भी करवा सकता है. सो आई यूज टू बुक फॉर माई फादर ऑल्सो, right? So they came up with those features because the market was increasing. Now even a parent more than 50 years old or 60 years old guy can also use Ola services, right? So that is what tech savviness really helped them going forward also, right? And talking about again the technological factor, one biggest factor was the internet access. Like I talked about, the shift was happening from 3G 4G to now 5G. So those kind of 2G से शुरू हुआ था जब उन्होंने लॉन्च किया था, तो वो ग्रोथ उन्होंने they were analyzing कि there will be lot of Jio was getting into, lot of telecom players were talking about 4G 5G will be coming after a couple of years. So they evaluated and analyzed that how the the infrastructural technological infrastructure growth gonna happen, right? कैसे उनको वो पुश मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा होने वाला है. एवरीथिंग गोना मूव टू दी स्मार्टफोन्स. उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. टुडे द इंडिया में द डेटा इज़ द चीपेस्ट. मतलब आज क्या है, 100, मतलब आप रिचार्ज करो और सारे लोग 5G अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब सॉर्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मैं कहूँगा, बट या इट्स वेरी चीप आई वुड से टुडे, राइट? एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तो लाइक I already told, like the growth was happening technological wise. सारी जो languages है नई नई आ रही थी, नए नए products आ रहे थे. People were moving towards product management, data science. That really helped them because उनका daily का कितना transactions है, कितना data होता है. All those people, वो सारे careers develop हुए हैं. Data scientist बनाए, data analyst बनाए. Now they are playing around data, actually, these big companies like Amazon, Ola, Zomato, right? So this is how things happened for Ola. This is how they actually analyze the whole external environment, which is not in your control or anyone's control, right? So ये अपने को one major learning from this is, I would say, ये कोई नहीं सोचता. I'll again repeat this, nobody bothers कि क्या हो रहा है. But on the broad level, we need to think these small things also. अपने लेवल पे देखो कि कितने लोग आपके सिटी में, अगर आप ऑफलाइन स्टोर डाल रहे हो तो कितने लोग हैं जो दे बाय दीज काइंड ऑफ अ प्रीमियम थिंग्स, व्हाटएवर इट इज़, बेसिस योर आइडिया, योर प्रोडक्ट. उस पर्सपेक्टिव से यू नीड टू गेट इन टू ऑल दीज फैक्टर्स. ये सिर्फ ओला के पर्सपेक्टिव से है. स्मार्टफोन यूज़र हो सकता है आपका ऐप का ऑफरिंग ही नहीं है, राइट? यू हैव अ डिफरेंट ऑफरिंग ऑल टुगेदर, बट दैट इज समवेयर द एग्जाम्पल वॉज टू टेल यू कि ये आपको अपने ही
आइडिया के लिए इम्प्लीमेंट करना है। डू दैट एक्सरसाइज, इट्स वेरी गुड इन द सेंस दैट यू विल गेट अ मोर थॉट कि हाँ यार ये आइडिया इज़ गेटिंग इन टू द राइट मार्केट। ब्रॉड लेवल पे आई एम श्योर आपको वो आइडिया आ गया है, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका अगर फूड बिजनेस है तो ऑब्वियसली पता है फूड तो यार बिकता ही बिकता है, उसकी मार्केट बड़ी ही बड़ी है। बट हैविंग सेड दैट, जब आप यूनिकनेस करते हो, यू पुट सम यूएसपी टू इट, तो वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, राइट। सो वो एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता। फॉर इंस्टेंस बड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कहते हो रेस्टोरेंट डालना है, बड़े एश्योर्ड हो मार्केट बहुत अच्छी है, सब लोग इंडिया में खाना खाते हैं, इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, पैसे बढ़ेंगे सबके, तो सब खाने पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सोशो कल्चर बढ़ता जा रहा है, सब लोग सोशलाइज करते हैं, यू विल बी वेरी कन्विंस। बट अगर मैं बात करूँ कि ये तो बहुत जेनरिक है, ये तो फिर एक तरीके से रिस्क टेकिंग हुआ ही नहीं ना। अगर आप बात करते हो मैं एक नई कुजीन लॉन्च करता हूँ, लेबनीज कुजीन लॉन्च करता हूँ या टर्किश कुजीन लॉन्च करता हूँ, उसका रेस्टोरेंट, अब फंस जाते हो तुम। अब आता है ये स्टार्टअप का चक्कर कि अब मैं टर्किश कुजीन लॉन्च कर रहा हूँ, अब उसकी मार्केट क्या मेरे एरिया में लोग प्रेफर भी करते हैं टर्किश कुजीन, लेट मी डू अ सॉर्ट ऑफ आइडिया, या मैं पूरा डेटा निकालूँ, सेकेंडरी रिसर्च करूँ कि हमारे यहाँ पे कितने लोग जाते हैं, कितने लोग टर्की ट्रैवल करें, मे बी कुछ भी, यू हैव टू एनालाइज दैट वेरी केयरफुली, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू अ यूएसपी और अ स्पेसिफिक थिंग, वहाँ पे ये बहुत काम आता है। जेनरिक लेवल पे डेफिनेटली वी आर वेरी अश्योर्ड, भैया स्कूल डालना है तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आई नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ इट। बट जब मैंने एडटेक बिजनेस करना है, एडटेक बिजनेस में मेरी ऑफरिंग बड़ी यूनिक है, मैं ऑन डिमांड एजुकेशन सर्विस दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि हाउ आर द थिंग्स, राइट। सो दिस वॉज द थिंग। नाउ लेट मी ओपन अनदर thing. So this was one external environment. So I'll move on to market sizing, right. और अगर आज दो अप्रोच होती हैं, so अगर एक भी हो जाएगी will be good, second one we may do it tomorrow then. यार ये इसमें होगा। So I think it was fine, very simple, but you should understand from the perspective of a startup maybe. Yeah, one. Cool. Okay, so this doesn't have much content, so but ये मैं सारा example से ही समझाऊंगा, so the next thing that we are doing is market sizing. अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि it's a $20 billion market, $50 billion market, $90 billion market. So how we come to that? जो आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, दे आर द ऑलरेडी मार्केट रिसर्च कंपनीज जो वो फिगर्स डालती हैं, राइट। आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं कि दिस मार्केट इज़ दिस मच, सो वो भी कहीं से निकाल रहे हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं हमें पता लग जाएगा। ऑनेस्टली वी विल अंडरस्टैंड टुडे, राइट, एटलीस्ट वन अप्रोच। सो पॉइंट बीइंग कि इसका एक पहले बेसिक रूल तुम्हें बता देता हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड, इफ़ यू टेल मी कि द एडटेक मार्केट इन इंडिया इज़ $3 billion, आई विल बाय इट, बिकॉज आर्टिकल्स हैं अवेलेबल, सबको पता है। या तुम्हारा बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इस चीज़ की मार्केट इज़ लाइक से $20 billion, $20 billion, आई एम एज एन इन्वेस्टर रियली डजेंट केयर अबाउट द फाइनल नंबर। अब वो 20 है, वो 19 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, या वो 3 है, वो 3.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, राइट। बट हम देखते हैं पूरी फिगर एक आती है, ऐसे राउंड ऑफ करके आती है। वाई? बिकॉज द इन्वेस्टर इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू द फाइनल नंबर। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 20 का तुम 200 भी बोल सकते हो। पॉइंट बीइंग कि वॉट अप्रोच यू फॉलो टू गेट टू दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, is really most important. So I'll tell you now, talking about the approach. So basically there are two kinds of approach that we're gonna discuss. Naam sun lo, but we'll do it practically right now. Top down and bottom up, right? अब हम सिर्फ टॉप डाउन पे फोकस करेंगे आज, राइट। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, सो टॉप मतलब ऊपर से लेकर मैं नीचे जाने की बात कर रहा हूँ। सो समवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉड मार्केट एंड figuring out and coming out to my target market for my business, for my venture. बेसिक आइडिया लग गया। ऑब्वियसली यहाँ पे इस स्लाइड को पढ़ के कुछ आइडिया नहीं लगेगा, बट बेसिक आइडिया जस्ट कीप इट इन योर माइंड।
इसके लिए द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ योर टीजी, टारगेट ग्रुप, कि आप टारगेट किसको करना चाहते हो, राइट? कि मैं K-12 को करना चाहता हूँ, सिर्फ एक क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को करना चाहता हूँ फॉर इंस्टेंस, राइट? तीसरा पॉइंट कि इस चीज़ को करने के लिए you might have to do a secondary research or have to take an assumption. So it's all about approach. It's there is no right and wrong answer to it. It is basically the approach that you follow and how good is that approach and right is that approach, that is very important. That matters actually at the end, right? So मैं सीधा example लूँगा because this is something that we need to understand practically. So the example that I'm taking is to size the market for a K-12. K-12 is like from class 1 to class 12 को cater करने के लिए online education का startup in India. So I'll keep it right now in India because obviously global level पे data collect करना is very difficult. So every founder or an entrepreneur starts with an Indian market if he is in an Indian actually. So obviously हम लोग तो इंडिया में ही लॉन्च करने का सोचते हैं, तो it makes lot of sense to size Indian market first, right? अब जब हम साइज़ की बात करते हैं तो एक और छोटी सी बात क्लैरिटी के लिए यू शुड बी नोइंग, जब हम कहते हैं $3 बिलियन मार्केट, इट्स अ ह्यूज नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक आज एडटेक वेंचर लॉन्च करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू, दिस इज अ रेवेन्यू नंबर, मैक्सिमम रेवेन्यू आई कैन अर्न फ्रॉम दिस मार्केट टुडे इज $3 बिलियन विच इज़ ह्यूमंगस, राइट? सो पॉइंट इज कि मार्केट साइज का मतलब ये होता है कि दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द मार्केट, उतना मैक्सिमम रेवेन्यू दैट आई कैन फेच टुडे इफ आई हैव 100% शेयर. ये क्लियर है? बड़ा बेसिक समझाया मैंने, कोई डाउट तो नहीं? आई जस्ट वांट टू हैव अ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एनीवन. No, that's clear. या सो व्हेन आई से 3 बिलियन मतलब आज अगर आप अपने मार्केट में वेंचर लॉन्च करते हो तो आप मैक्सिमम अगर 100% मार्केट का शेयर लेते हो तो आप 3 बिलियन कमा पाओगे पर एनम. आई अगेन एडेड वन न्यू थिंग, पर एनम मतलब एक साल का, राइट? सो इट्स एनुअल बेसिस पे हम वो फिगर निकालते हैं और वो जो फिगर आती है वो एज ऑफ नाउ होती है. एज ऑफ नाउ का मतलब आज की डेट में. कल वो 3.1 हो सकती है, एक साल बाद वो 5 हो जाएगी, 5 साल बाद वो 10 भी हो जाएगी, राइट? सो नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. I'll open an Excel sheet और टॉप डाउन अप्रोच को उससे समझेंगे विद दिस एग्जाम्पल फॉर अ एडटेक वेंचर catering K-12, only K-12 we have taken and in India. So let me just open. So इसमें मैं एक और डिस्क्लेमर डाल देता हूँ. So not to worry as in Excel खोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी रॉकेट साइंस लगी हुई है. It is all प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 4 से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है? So कहाँ गया यार एक एग्जाम. So won't be something very difficult. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. विजिबल है सबको? जस्ट कंफर्म. Yes. ठीक है, परफेक्ट. मैं थोड़ा ऑन अ सेफर साइड हल्का सा एक और बढ़ाई देता हूँ, ठीक है? सो देखो, अब समझो, अब एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं. ये अगेन यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन वेंचर, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि हम एक वेंचर लॉन्च कर रहे हैं जो K-12 ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप है, राइट? K-12 अगेन आई हैव एक्सप्लेन, टैपिंग इनटू क्लास 1 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स. सो ऑब्वियसली माई टारगेट सेगमेंट इज डिफाइंड हेयर. सबसे पहला काम ऐसे डिफाइन करना होता है. K-12 का स्टूडेंट है, मतलब क्लास 1 टू क्लास 12 का स्टूडेंट है. ऑनलाइन एजुकेशन बोला है तो थोड़ा सा डेफिनेटली टेक सेवी होना ज़रूरी है. उसके पास एक्सेस होना चाहिए लैपटॉप मोबाइल का, एंड ही वॉन्ट्स टू स्टडी मोर देन स्कूल एजुकेशन. मतलब मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, सो इट्स अ एड ऑन एजुकेशन. व्हेन आई से ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज़ बेसिकली ऑनलाइन एड ऑन एजुकेशन इन द सेंस, क्योंकि मैं स्कूल बिजनेस में नहीं जा रहा. स्कूल होता तो इट्स वेरी old fashioned business that I am talking about. So I am here talking about a case like Vedantu. Think like Vedantu सबको पता होगा, I am pretty sure. नहीं पता तो बता दो अभी, I'll explain that also, interrupt करके, right? So we are talking about some add-on education here. Wants to study more than school education. Age bracket obviously 6 to 17 जाएगा,
दैट्स अ वेरी यूजुअल थिंग. जेंडर, इट कैन बी एनी वन, बॉय हो, गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो. सो दिस इज़ माई टारगेट सेगमेंट, राइट. बेसिक लेवल पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया. बट अब मुझे मार्केट साइज करने के लिए ना कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं और कुछ एजम्पशंस चाहिए होती हैं या कुछ रिसर्च करके नंबर्स निकालने होते हैं. सो आई जस्ट शेयर इट. आप देखोगे सबसे टॉप बॉटम, टॉप डाउन का मतलब क्या हुआ, टॉप का नंबर निकाल लो. मतलब मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट निकलता है, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया. ऐसी अपनी फील्ड में तुम्हें अपने अपने रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे कि कहाँ से क्या डेटा निकल सकता है. सो जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक डॉक्यूमेंट निकलता है जहाँ पे दे डिफाइन कि कौन कौन सी एज ब्रैकेट में कितने पॉपुलेशन है. तो मैंने सिंपल पॉपुलेशन ले लिया, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ K-12 स्टूडेंट्स इन इंडिया इज़ अप्रॉक्स 35 करोड़, जो आज की डेट में 40 हो गया होगा. 400 मिलियन, 400 मिलियन इज़ 40 करोड़. सो दिस इज़ 35 करोड़, राइट. सो दिस इज़ अ लिटिल ओल्ड डेटा, बट फॉर एग्जाम्पल पर्पज दिस विल डू, राइट. सो ये 40 करोड़ आज हो गया होगा और ज़्यादा भी हो सकता है, बट या इट कम्स एनुअली ओनली सच डेटा. तो ये सिंपल पॉपुलेशन डेटा है कि भैया मेरे 7-6 साल के से 17 साल की उम्र में मेरे देश में, इंडिया में 35 करोड़ बच्चा है. ये नंबर तो हमारा टॉप का नंबर हो गया. बट हर बच्चा क्या मेरे को ख़रीदेगा, आई डोंट नो. हर बच्चा क्या मेरी मार्केट है, आई डोंट नो. सो देयर वुड बी लॉट ऑफ नैरोइंग डाउन विच वी हैव टू डू. टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, बॉटम अपने टारगेट सेगमेंट पे, राइट. दूसरी एजम्पशन मैंने क्या लिया है कि एक एवरेज प्राइस जो एक स्टूडेंट पे करेगा पर मंथ पर सब्जेक्ट विल बी 2200 रुपये. एजम्पशन है, आप ऑन एन एवरेज इसका मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, तो रिसर्च कर सकते हो या एज्यूम कर सकते हो. अगर आपका फेयर आइडिया है तो आप एज्यूम कर सकते हो, ज़्यादा है तो 10 बच्चों से पूछ के बता सकते हो बेटे आजकल मार्केट में ज़रा क्या चल रहा है. बट ये भी सोचो कि एक बच्चा 1000 रुपये भी देता है और एक बच्चा 10,000 भी देता है, राइट. सो समवेयर पर सब्जेक्ट पर मंथ हमने 2200 ले लिया. हमने क्यों लिया, आई टेल यू लेटर. एक और अजम्पशन बनाई कि यार बच्चा ट्यूशन्स लेता कितना है, एक्स्ट्रा कोचिंग लेता कितना है. एक सब्जेक्ट की लेता है ऑन एन एवरेज 5 से 7 सब्जेक्ट होते हैं कि फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास में, ऊपर जाके 5 हो जाते हैं कईयों में. तो एक अब जब ट्यूशन्स की बात कर रहे हैं तो एक तो लेगा, बट कई होते हैं जो 2 की भी लेते हैं, कई होते हैं 3 की भी ट्यूशन्स लेते हैं, राइट, कोचिंग लेते हैं. सो यहाँ पे हमने ले लिया कि एवरेज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर विच ट्यूशन कैन बी टेकन इज़ 1.2. अब देखो ये हम बहुत ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं. सो डोंट बी अमेज कि मैंने यहाँ पे 1 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 लेंगे तो इट विल बी अ फेयरली लार्ज नंबर कि हर बच्चा 2 थोड़ा ना लेता होगा यार. बट हम ट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम उन बच्चों की बात करें जो 1 लेता है, राइट. तो 1 लेता है तो मतलब सारे लोग 2 भी नहीं लेते. तो समवेयर 1.2 एज अ फ्रैक्शन हमें लेना पड़ा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ह्यूज मार्केट विच इज़ इंडिया, राइट. दैट्स वाई देर इज़ अ 1.2 डेसिमल वाला फिगर हमने जो लिया है, राइट, नॉट 1 नॉट 2. नाउ दिस अगेन रिपोर्ट से पता लग गया कि द स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर स्कूल इज़ 87%. सारे लोग स्कूल के लिए एनरोल भी नहीं होते हैं हमारे देश में. प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट, ये रिसर्च से निकाला हुआ है, प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट ड्रॉप आउट रेट भी होता है. बच्चे स्कूल छोड़ के निकलते हैं ऑलमोस्ट 6% ही हो गया, 5.98. 6%, 100 में से 6 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. दे डोंट परस्यू एजुकेशन फुल्ली, राइट. दैट्स द परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ट्यूशन क्या करेगा, स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो रहा है तो वो हमें आउट करना है. सो वी हैव टू कम आउट स्लोली 35 करोड़ से हमें कम पे जाना है, राइट. ये एज्यूम किया $1.70 के साथ है अगर USD में हमें मार्केट निकालनी है. और एक और चीज़ एज्यूम करी है विच इज़ ऑन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर ट्यूशन एक्स्ट्रा स्टडीज़ इज 75%. मतलब 4 में से 3 बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं बिकॉज लुकिंग एट द ट्रेंड या फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट कि यार आजकल बैजूस चल पड़ा है, दांतु चल पड़ा है, हर बच्चा ही ले रहा है, हर बच्चा ही एक्स्ट्रा एजुकेशन ले रहा है. स्कूल तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल, not improving, right. So with that presumption 3 out of 4 students are actually going for a extra education, coaching, tuitions, right. So now ये हमने TG सेट किया, कुछ हमने रिसर्च से फिगर निकाली, कुछ हमने एज्यूम करी, कुछ हमने आसपास से पूछ के निकाली. सो दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोच. ये अप्रोच है कि मैं कौन सा डेटा पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं इस पर फिगर आउट करता हूँ, ये सारी अप्रोच है. नंबर क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, डजेंट मैटर.
एट द एंड व्हाट यू कन्विंस इज, आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हो एंड यू से in India we have 400 million students, and out of that 95% does is our market, and out of that 6% is still drop out, and at the end we have 200 20 million 200 million students paying us $5 per month, making it this much of market. ये एक लाइन में जिसने बता दिया ना, इन्वेस्टर समझ जाता है कि यार इसको पता है कि कहाँ पे जा रहा है, किस मार्केट में जा रहा है, उसने उस मार्केट के ऊपर रिसर्च करी हुई है, बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहा है. सो दैट गिव्स हिम द कॉन्फिडेंस, राइट. सो ये नंबर एक्सरसाइज कहने के लिए है कि यार ये कोई पेपर में तो आनी नहीं है, बट आई नो कि यार इस देश में 400 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आई एम इन द एडटेक सेक्टर यार, आई नीड टू नो, राइट. सो दैट्स द बेसिक थिंग. एवरेज प्राइस बंदा कितना देता है, मेरी प्राइसिंग भी इससे निकल के आती है. सो दिस विल हेल्प मी इन प्राइसिंग ऑल्सो, मार्केटिंग पे जब हम करेंगे. सो ये बेसिक एलिमेंट्स की चीज़ें जब हम करते हैं तो इट हेल्प्स लेटर ऑल्सो. अब थिंक दैट वेज. अब हमारे पास एक टॉप का नंबर आता है 35 करोड़, 35 CR, सिंपल. अब उसमें से सबसे पहला चीज़ है कि भैया इसमें से 87% स्टूडेंट तो एनरोल होते हैं, 13% तो होते ही नहीं है. सो यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 35 CR है, सिंपल मल्टीप्लाई करा है, नथिंग अनयूजुअल. 87.87 इज 87% इंटू 35 CR. सो वी गेट टू नो कि इट्स नॉट 35 CR विच इज़ अवर मार्केट, इट इज़ 30.45 CR वी आर टॉकिंग अबाउट. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंडिंग द स्कूल इज दिस यार, एनरोल ही नहीं होते हैं, राइट. उसके बाद उसमें से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं. तो 0.0598 इज अगेन 5.98%. अगेन उसमें से 1.82 समवेयर CR स्टूडेंट्स तो एक्चुअली ड्रॉप आउट हो रहे हैं. तो जब वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो आई मीन वो कब हो रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट नेटिग्रिटीज, बिकॉज अगेन आपको एक अप्रोच फाइनल करनी है. वी आर नॉट डिस्कसिंग कि वो 8वीं क्लास में हो रहा है या 5वीं क्लास में हो रहा है, 5वीं तक काउंट करें. सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट थिंग. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो. बट पॉइंट इज कि यार वो बच्चा 5वीं में हो रहा है या 8वीं में हो रहा है, अगर वो 5वीं में हो रहा है तो मतलब वो पढ़ने वाला है नहीं, तो एक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में भी वो ट्यूशन नहीं लगाएगा. सो मैंने पूरा 6% ऑन एन एवरेज निकाला, क्योंकि एवरेज ड्रॉप आउट रेट है ये. मुझे रेट भी वहाँ से वैसा मिला कि ये ऑन एन एवरेज पूरे साल में 6% लोग निकल जाते हैं, राइट. सो पूरे 30 करोड़ में से ये एक 1.82 करोड़ भी निकाल दिया. तो एट द एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल आफ्टर ड्रॉप आउट इज 28.63 समवेयर CR, राइट. अब आती है बारी अब हमारी मार्केट की. यार ये तो स्कूल जाते हैं ना, स्कूल तो मैं बना नहीं रहा, स्कूल होता तो मेरी ये मार्केट ये होती. बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल टेकिंग एक्स्ट्रा कोचिंग, एंड आई हैव अज्यूम्ड समथिंग कि यार 4 में से 3 लोग ही एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं, विच इज 75%. सो अगेन आउट ऑफ 28.63 CR, 75% इज समवेयर इज माई मार्केट. सो मैंने क्या किया, 75% से मल्टीप्लाई कर दिया, right. 75% into 28.63 CR, which comes out to be 21.5 CR somewhere, which is this figure that you could see, right. So अब मुझे समझ में आया कि यार ये 35 करोड़ तो था, बट आते 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 it is somewhere 21.5 CR only that is my market. और ये भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, अगर तुम देखो तो इसको 50 भी ले सकते हो, बट ये रिसर्च का एलिमेंट है, डिबेट का एलिमेंट है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर वेंचर. Right now I have taken 75. Yes, looking at the scenario, futuristic viewpoint, I can take that, and I can, if I'm able to justify, that's absolutely fine, right. Now after getting this, that's why I took these assumptions also, because I'll tell you, आपने number of people निकाल दिए कि जो मेरे को शायद मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, 21.5 करोड़. बट मार्केट जो होती है वो रुपी वैल्यू में होती है, मतलब इट्स नॉट नंबर. राइट नाउ दिस इज़ नंबर, 21.5 CR इज़ अ नंबर. सो अगर मैं बात करता हूँ, मेरी मार्केट है 100 लोगों की और मैं बात कर रहा हूँ उनसे 50 रुपये लेने की, तो सिंपल मैं 100 इंटू 50 कर दूँगा तो मैं 5,000 रुपये कमाने की बात कर रहा हूँ. तो मेरी मार्केट है 5,000 रुपीज़. 100 लोग जो मुझे 50 रुपये देंगे, मतलब मैं 5,000 रुपये कमाऊँगा, तो माई मार्केट इज़ 5,000 रुपीज़ की मार्केट. सिमिलरली दिस नंबर वी हैव गॉट इट 21.5 CR, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ नंबर. पॉइंट इज़ कि मार्केट कैसे डिफाइन होती है, सिंपल मल्टीप्लाइंग बाय द प्राइस.
मैं उससे कितना पैसा ले रहा हूँ, 21.5 करोड़ लोगों से मैं 2,200 रुपये ले रहा हूँ, तो मेरी मार्केट निकल आएगी. बट 2,200 रुपये में कितने ले रहा हूँ, एक सब्जेक्ट के लिए, एक महीने के लिए. तो मैंने सब्जेक्ट्स कितने लोग लेते हैं, 1.2, और महीने कितने होते हैं, इफेक्टिवली हमने 10 ले लिए, 2 महीने छोड़ दिए कि 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं. सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 21.5 CR को 2,200 रुपये के साथ, और ऑब्वियसली ये 2,200 पर मंथ पर सब्जेक्ट है, बट हर एक बच्चा 1.2 सब्जेक्ट ले रहा है और 10 महीने हैं, तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ 21.5 इंटू 2.2 और 2,200 इंटू 1.2 इंटू 10 विल गिव मी द मार्केट इन रुपीज़. अब ये बहुत बड़ा नंबर है. अब ये नंबर पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, 56,060, 56, आई मीन यू विल नॉट अंडरस्टैंड. दैट्स वाई यू सी कि ये तो ये 20 तो 1,000 हो गया, 98 लाख हो गया, 50 ये CR हो गया. तो ये CR है 5,66,855 CR है ये बेसिकली. इतना बड़ा CR है, करोड़ है. तो पॉइंट इज़ कि अगेन इट इज़ इन इंडियन रुपीज़. सो व्हाट वी डू इज़, यूजुअली आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, वी डिवाइड दैट, वी मेक इट इनटू $1 billion. सो अगेन 10 लाख इज़ 1 मिलियन, तो यहाँ पे 10 लाख से डिवाइड कर दिया. सो 56,68,560 million rupees is such a huge market, right? Basis the students we have in our country. So ये टॉप डाउन अप्रोच है. और अगर हम $1 million में करेंगे तो 70 से डिवाइड कर दिया तो 80,979 $1 million. और ऑब्वियसली अब इतना बड़ा ये भी फिगर है तो वी बिलियन में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 1000. सो 80.98 विच इज़ ऑलमोस्ट $81 billion की मार्केट है, विच इज़ दिस मार्केट फॉर K-12, राइट? सो दैट इज़ हाउ तुम देखो कि यू नो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, वी आर जस्ट नैरोइंग इट डाउन. अब ये जो है ना, ये एग्जाम्पल लिया है. आई कैन और इवन यू कैन पुट मोर नंबर ऑफ फिल्टर्स इन द सेंस कि और उसको ड्रिल डाउन करके और बेटर नंबर भी आ सकता है, और रिसर्च करके. बट यू अंडरस्टूड द बॉटम लाइन कि हम मार्केट साइज करते कैसे हैं, वो तुम्हें समझ में आ गया. बट दिस सोली डिपेंड्स, इवन इस K-12 के लिए भी देयर कैन बी फ्यू मोर थिंग्स, मे बी आई विल रिसर्च कि कोई बाद में जाके पता लगेगा, अरे यार ये तो किया ही नहीं, अरे ये नहीं किया. अगर मेरा ऐप का है तो मेरे को यहाँ पे एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा. बाय फिल्टर आई मीन कि नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स, मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्मार्टफोन परसेंटेज यूज़र्स इन इंडिया. तो स्मार्टफोन परसेंट यूज़र मेरे ख्याल से सारी फैमिलीज़ में होगा मे बी 60%. तो मैं 60% से 21.5 करोड़ को कर दूंगा अगर ऐप का है. वेब का है तो ठीक है, या और फिल्टर लगा के कि किसी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है समवेयर. इट कैन बी सो वास्ट, बट यू हैव टू डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू come up. So it's all, there's nothing right, nothing wrong, but you will get an idea कि what market you are talking about, what is the, ये करते करते तुम्हें समझ में आएगा कि यार अरे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अरे ड्रॉप आउट रेट भी होता है, अरे मार्केट तो और कम होती जा रही है, अरे ये होता है, इंटरनेट एक्सेस नहीं होता कुछ सिटीज़ में, वो भी कर सकता हूँ. Anything, right? So it's not about this 81 billion that you come out with, it's about the approach that you follow to get to that, right? Or obviously at times people do ask कि यार शेयर कर दो कि how you have approached to that. कर सकते हैं. People they definitely ask at times कि आपने कैसे decide किया कि क्या market है. Like I said, in legal tech we were really struggling. The market was not that big, but yes, somewhere we did that exercise, we came out with a thing and we came out like it's a 3 billion, 4 billion US dollar market. We convinced ki these much of lawyers are there are 20 lakh lawyers in India, 20,000 judges, 28 high courts, 1 Supreme Court, law enforcement agencies 50 हैं, right? लॉ स्कूल्स 1,500 हैं, और एक लॉ स्कूल से 1,500 से अगर मैं 2 लाख रुपए ले लेता हूँ, या एक लॉयर से मैं 25,000 ले लेता हूँ, तो मेरी मार्केट इतनी हो जाती है. दे वॉन्ट टू लिसन टू दिस, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि यू रियली नो हाउ टू साइज द मार्केट और नॉट, राइट? सो 2 things we discussed. 1,
talking about the external factor that everybody misses out, right? सिंपल पेस्ट एनालिसिस लिया जो हमने बचपन में पढ़ा होगा, करके देखा, अप्लाई किया अपने स्टार्टअप में, अमेजिंग आउटपुट निकल सकता है उससे, राइट? अनदर थिंग इज़ वी स्टार्टेड विथ साइजिंग द मार्केट. एक अप्रोच देखी टॉप डाउन, राइट? कैसे हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं, एटलीस्ट वी फाइंड आउट कि वेयर वी स्टैंड एज एन आइडिया, वेयर दिस आइडिया बिलोंग्स टू विच मार्केट एंड हाउ बिग इज़ द मार्केट, राइट? ऑल्दो यू माइट बी नोइंग, अगर तुम्हारा फूड बिजनेस है, यू माइट बी नोइंग, एवरीबडी इज कन्विंस कि फूड बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बट इफ़ यू टेल दिस इज़ हाउ माई प्रोडक्ट इज, दिस इज हाउ आई हैव come up to my market sizing, people will really admire you, will finally investors will get impressed by this point only, right? So ये हमने देखा. नेक्स्ट में हम लोग दूसरी अप्रोच में नेक्स्ट में ले लूँगा, विच इज़ टुमारो. सो दैट्स अ बॉटम अप. नाउ we'll be talking about from bottom to up. So that's a again assumption based है, बहुत सारे research based है, but we'll take it up tomorrow. Any questions on these two things? I'll be open to answer. Any questions किसी का है? हिमांशु, एक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो यूएसपी यूनिक सेलिंग जो पॉइंट है, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट विल बी माय यूएसपी? गैप के बेसिस पे. I'll give you an example. अब मैं ग्रैब गाइडेंस का एग्जांपल देता हूँ. मार्केट में देर आर सो मैनी एडटेक प्लेयर्स, एवरीबडी एग्रीज, बायजूस है, वेदांतु है, यू नो, आई थिंक आई माइट हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट. बट आप समझो कि वो जो गैप है, हमें गैप निकालना है मार्केट में. बायजूस भी दे रहा है सब कुछ, वेदांतु भी दे रहा है, बट हाउ आई एम डिफरेंट. सो आई हैव टू रन माई माइंड फिगरिंग आउट कि समथिंग डिफरेंट आई हैव टू गिव इन कंपैरिजन टू दीज बिग शार्क्स. अनअकैडमी है, कॉर्सेरा है, अपग्रेड है, सबके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, यू नो, सबके पास लाइव क्लासेस भी हैं, K-12 को भी टारगेट कर रहे हैं. पॉइंट इज वी केम अप विथ समथिंग विच इज़ ऑन डिमांड सेशन बुकिंग लाइक एन ओला. सो दिस इज़ अ USP, समथिंग यूनिक selling proposition which can be sold in the market, and it is a proposition for a client, for your user, for your customer. So USP is something which is possibly not being offered by anyone in a very similar way. ऐसा नहीं कह सकते कि not so similar way में भी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं indirect competitor तो आप avoid कर ही नहीं सकते हो honestly, but yeah, not in a very direct similar way. There is something unique to it. अब वो unique आपके प्रोडक्ट के फीचर में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है. कि सर्विस में आप कहते हो कि मैं कोई भी मार्केट में ना आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, आपको प्रोडक्ट बेचने के बाद ट्रेनिंग दे रहा, तो मैंने एड ऑन कस्टमर ट्रेनिंग रख दी है. दैट्स अ यूनिक एलिमेंट. मे बी ये तो बहुत बेसिक है, बट अब तो काफ़ी लोग देने भी लग गए हैं. बट पॉइंट इज़ कि 100 लोग नहीं दे रहे, आप वो दे रहे हो, राइट? सपोज़ एक मुझे याद है, अंजना का मुझे पॉइंट याद आता है कि सब लोग ऑर्गेनिक फूड्स दे रहे हैं, बट वो एक न्यूट्रिशनल सर्विस भी दे रही हैं. मे बी दैट्स अ यूनिक थिंग. सब लोग नहीं दे रहे, राइट? मे बी बहुत फ्यू दे रहे होंगे, अलग तरीके से दे रहे होंगे. शी हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मैंने किसी चीज़ का एक्सेस दे दिया. जिम में आजकल क्या हुआ, जिम में जब जाते थे तो पहले ट्रेनर होते थे, फिर पर्सनल ट्रेनर हो गए, फिर वो जिम चलने लग गया, कुछ पर्सनल एलिमेंट से, फिर न्यूट्रिशनल एलिमेंट आ गए जिम में भी, राइट? सो समथिंग डिफरेंट दैट अदर्स आर नॉट डूइंग इज USP. I think I answered, no? Got it. Yeah, got it. ठीक है, Thank you. ठीक है. सो गाइज, कल हम बॉटम अप भी करेंगे. सो पॉसिबली यू कैन ट्राई योर हैंड्स रिसर्चिंग. ये पूरा मार्केट साइजिंग पूरा एक वीक होगा करने के लिए, राइट? नो वरीज ऑन दैट. तो वो कर भी सकते हो, बट पॉइंट बीइंग कि स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स नाउ. मेरा पर्पज़ यही होता है कि आप, द टेक अवे इज़ दैट हमने कुछ सीखा, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग में भी पूरा एक वीक हो जाता है. हम 2 क्लासेस साथ में करते हैं, उसके बाद पूरा वीक आता है. सो देयर यू कैन जस्ट टेक इट अप एंड डू समथिंग फॉर योर ओन वेंचर. दैट विल रियली हेल्प यू. सो एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज़? कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, आई विल बी हैप्पी टू रिपीट ऑल्सो, नो वरीज. और वॉज इट सिंपल, राइट? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर दी मैंने? No. ठीक है. ठीक है. बिकॉज पॉइंट इज, हमें यहाँ पे वी डोंट वांट टू लाइक गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, बट
बड़े लेमन तरीके से, एजुकेटेड तरीके से वी हैव टू अप्रोच. सो ऑल गुड. थैंक यू सो मच गाइस. सो आई planned these two things only for today, looking at the time. Third one, definitely let's take it up tomorrow, the third thing, which is the second approach. All right. Yeah. All Okay. right. Okay. Thank you. Cool. Thank you Dhriti, thank you Anjana, thank you Shweta, thank you you. Mohita. Take care. Bye. Thank you, Himanshu. See you Yeah. tomorrow. You too. Bye. 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 Thank you. Bye.